Yeah, great. Okay. Yeah, good afternoon, everyone. Let's start. So today we'll start with circles. And as we were learning about different parallelograms, like different polygons and its shapes and sizes, not specifically polygons, but quadrilateral, like parts of polygons, you can call it as. And polygons, so like 2 to 3 class earlier, we got to know about this particular term polygon, which meant the poly and gon, which is many sides, something a figurine which has many sides. But circle is an exceptional and polygon was a closed curve. Closed curve, as we have discussed before as well, closed curve is something which is closed. It can be anything, but it would be closed. Okay. And an open curve is something which has a distinct initial point and the end point, and it would not join itself. Like, for example, if we see the letter C, so C has an initial point and an ending point, but it does not connect both. And if we connect both of them, then it would be a closed surface. But since we are not connecting both of them, so it's an open curve. So any figure, for example, the number 8. So 8 is also a closed curve. So similarly, circle is a simple closed curve. Okay. And which is definitely, it's not a polygon because it has a single stretch of line, or we can say it's a single stretch of segment, which is starting from a point and it's ending to another point. So it does not really make any sort of figure which has its own sides. For example, in square we have seen it has distinct four sides. In quadrilateral specifically, we have seen it has four sides, four angles, and all of those things. But in circles we do not see all of these things. Later, so in today's class we'll discuss about the parts of circle and few properties of it. Okay. So parts of circle, as we know, so firstly we will see like the definition of it, and later we will understand by via diagram for better clarity. Okay. So first, this is the segment of a circle. So what is a segment of a circle? It is the interior region. रीजन का मतलब सबको पता है कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया, मतलब सरफेस एरिया या फिर कोई एक पर्टिकुलर रीजन के बारे में बता रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये 8 अगर आप कंसिडर कर रहे हो, 8 के अगर हम ऊपर वाले हाफ का वो कंसिडर कर रहे हैं, ये वाला पार्ट, तो दिस इज बेसिकली this region of 8, the upper region of 8, you can call it as, and this is the lower region of 8. So this is about it. So region is any surface area, or you can call it as a particular area of it, or a particular kind of which will satisfy the properties of surface area and on all of these. Okay. So now it is a region of in the interior of the circle. तो ये कोई भी circle का interior के portion में होगा. We got that. And then बाहर अगर आप circle को कंसिडर नहीं करेंगे, वो वाले रीजन को कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है. ये हमारे इंटीरियर सर्कल के इंटीरियर वाले पोर्शन को कंसिडर करेंगे, और इट इज एनक्लोज्ड बाय एन कॉर्ड. अभी कॉर्ड जानते हैं और आर्क जानेंगे कि क्या होता है. ठीक है. सो नाउ सर्कल, जैसे हम लोग को पता है कि सर्कल एक फिक्स पाथ पे, मतलब एक फिक्स पॉइंट से मूव करता है, और इक्वी डिस्टेंस पे, मतलब सेम डिस्टेंस पे मूव करता है. फिक्स पॉइंट क्या होता है, हो जाता है आपका जो सेंटर हो जाता है, वो आपका फिक्स पॉइंट है. द सेंटर इज द फिक्स पॉइंट ऑफ अ सर्कल, राइट. सो equidistant पे it moves. If we consider like बचपन में हम लोग जब ज्योमेट्री बॉक्स था हमारे पास, तो we used to see there was this instrument called a compass. तो यहाँ पे कॉम्पस में एक पेंसिल होता था और एक निडल सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन होता था. तो निडल हम लोग एक पॉइंट पे फिक्स कर देते थे, ये निडल वाला पोर्शन, और और बाकी का जो पेंसिल वाला पोर्शन रहता था, दैट वाज मूवेबल. So we could rotate that accordingly, like according to our requirement. तो similar way में तो circle वैसे ही बनता है. I hope everyone is like getting it. मतलब जैसे हम लोग बचपन में वो कॉम्पस को मूव करते थे, वैसे ही आप इमेजिन कीजिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट पे एक नीडल है. ठीक है. यस, एक नीडल है, और हम लोग वैसे ही एक पेंसिल को इसको रोटेट करवा रहे हैं उसके, मतलब वो पॉइंट के चारों ओर. ठीक है. इन एवरी डायरेक्शन.
तो और सेम डिस्टेंस में होगा ऑफ कोर्स, एंड इफ यू आर नॉट, ये वाला जो डिस्टेंस रहता है वो सेम रहता है, अगर आप छोटा बड़ा नहीं कर रहे हो तो वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट इट। तो ये फिक्स पॉइंट से लेके आपका सेम डिस्टेंस में एक पाथ बनाता है अपना, और वो पाथ में जो एरिया इनक्लोज हो रहा है, जो रीजन इनक्लोज हो रहा है, उसको हम लोग पूरे चीज को सर्कल के नाम से जानते हैं, वो जो फिगर हम लोग बनाते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट वी कम टू नो एज सर्कल। नाउ ये जो फिक्स पॉइंट हो जाता है और ये जो फिक्स डिस्टेंस है, दैट इज द रेडियस, एंड जो डिस्टेंस है अराउंड द सर्कल, दैट इज द सर्कमफरेंस, ठीक है। ये जो डिस्टेंस हम लोगों ने कवर किया, मतलब वो फिक्स्ड पॉइंट से लेके ये जो पूरा डिस्टेंस हम लोगों ने कवर किया, मैं एक बार कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से देख पाओ कि जो ये डिस्टेंस हम लोग कवर कर रहे हैं, ये डिस्टेंस हो गया आपका सर्कमफरेंस, पेरीमीटर आप बोल सकते हो। जैसे हम लोग एक बार अगर आप पार्क में लाइक दौड़ने जाते हो या फिर चलने जाते हो, तो पार्क के इर्द गिर्द अगर आप मतलब पार्क के चारों ओर अगर आप वो कर रहे हो, और एक सर्कुलर पार्क है, फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल की तरह एक पार्क है, या फिर अगर आप कोई भी मतलब अगर स्क्वायर पार्क भी है, तो उसका जो साइड वाइज हम लोग चलते हैं उसको पेरीमीटर बोला जाता है, और सर्कल के टर्मिनोलॉजी में मतलब सर्कल के हिसाब से हम लोग उसको सर्कमफरेंस बोलते हैं, ये वाले पोर्शन को, ठीक है। और नेक्स्ट इज जो फिक्स डिस्टेंस हम लोग कवर कर रहे हैं, मतलब ये जो फिक्स डिस्टेंस हो गया ये आपका रेडियस बन जाता है, ठीक है। ये फिक्स डिस्टेंस मतलब ये फिक्स्ड क्यों है, क्योंकि यहां से भी जितना होगा यहां से भी उतना होगा, यहां से भी उतना होगा, फिर मतलब हर तरफ से ये सेम होगा, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होता है रेडियस का, अगर फोर्सफुली इसको कम ज्यादा नहीं कर रहे हो तो ये सेम ही रहता है, ठीक है। नाउ दिस डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज ऑफ कोर्स सर्कमफरेंस, जो हम लोगों ने जान लिया। कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल क्या होता है, ये एक लाइन सेगमेंट होता है, ये टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा कि एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि ज्वाइन करता है एनी टू पॉइंट फ्रॉम द सर्कल, कोई दो पॉइंट सर्कल के ये कनेक्ट कर देता है, ठीक है। तो कोई भी दो पॉइंट हो सकता है, जैसे ज्योग्राफी में हम लोग लैटिट्यूड पढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूड पढ़ते हैं, अर्थ को अगर आप एक परफेक्टली सर्कल नहीं है, मतलब स्पीयर है, बट देन अगर आप ऐसे कंसिडर कर रहे हो ओवरऑल एक व्यू, तो जो लैटिट्यूड्स होते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ लाइक कॉर्ड्स। तो एक पॉइंट से मतलब अगर आप एक 2D फिगर इन, वैसे अर्थ इज अ 3D, मतलब एक 3 डायमेंशनल है, पर अगर आप एक ड्राइंग मतलब ड्राइंग के हिसाब से देख रहे हो, अगर आप एक प्लेन पेज में ड्रॉ कर रहे हो अर्थ को, तो वो तो 2D फिगर बन जाता है, राइट। तो वो जो 2D फिगर बन रहा है और उसके हिसाब से अगर आप एक लैटिट्यूड ड्रॉ करोगे, तो दैट वुड बी अ कॉर्ड, ठीक है। जैसे सर पढ़ा रहे थे हॉर्स लैटिट्यूड्स एंड ऑल, तो ठीक है। और ये जो लाइन सेगमेंट होता है, क्यों लाइन सेगमेंट, ऑफ कोर्स हम लोगों ने लाइन सेगमेंट जब पढ़ा था, और वी लर्न अबाउट लाइंस एंड लाइन सेगमेंट, लाइक डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट। लाइंस के कोई स्टार्टिंग और बिगिनिंग पॉइंट नहीं होता है, लाइक स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, सॉरी, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। लाइन सेगमेंट का एक डिस्टिंक्ट स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट होता है। सो इट्स अ लाइन सेगमेंट ऑफ कोर्स, सो इट वुड हैव 2 points that would join, like 2 points that in the circumference of the circle, circumference पे ये 2 पॉइंट लाई करता है, और ये वाला वो जो दो पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है, दैट इज द कॉर्ड, ठीक है। नाउ आपका डायमीटर आ जाता है, एंड विच इज ऑफ कोर्स डायमीटर एवरीवन नोज, विच इज जो एक सर्कल को हाफ में डिवाइड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अर्थ के लिए इक्वेटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देता है, तो इट्स काइंड ऑफ द डायमीटर ऑफ पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। बट एक मतलब कॉर्ड ही है, मतलब एक स्पेशल फॉर्म ऑफ कॉर्ड है, फिर डायमीटर, ठीक है। नाउ जस्ट गिव मी अ सेकंड। Just give me a second. Okay, okay. So let's start again. Yeah, right. So now we'll come to know about sector, like sector का जो basic definition है. So sector's basic definition is आपका एक region, again it's a region that is in the interior of the circle, और ये क्या करेगा, एक arc और एक आपका
पेयर ऑफ रेडियाई के बीचों बीच जो रीजन होता है, दैट इज बेसिकली आपका वो सेक्टर. तो वी विल डेफिनेटली आप मतलब अच्छे तरीके से वो फिगर से आपको और समझ में आएगा. जस्ट गेट लाइक एक ओवरव्यू आप लाइक ये जो डेफिनेशन है उससे आप एक ओवरव्यू समझ लीजिए. राइट नाउ कमिंग टू द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल. सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज अगेन इट्स अ रीजन. रीजन एज इन एक एरिया, एक पोर्शन ऑफ सर्कल. ठीक है, एक पोर्शन कवर करता है जो कि एक रीजन है इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल विच इज एनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड. ठीक है, आर्क और कॉर्ड के साथ एक बनाता है. आर्क क्या होता है? आर्क आपका एक मतलब एक पार्ट होता है. ये सर्कमफेरेंस का एक छोटा सा पार्ट. आप कोई भी एक छोटा सा पार्ट को आप आर्क के हिसाब से कंसिडर, आर्क मतलब कंसिडर कर सकते हो. आई एम शोइंग यू कि कैसा होता है. जैसे ये पूरा अपने पूरा सर्कमफेरेंस होता है ना, तो ये वाला फॉर एग्जांपल दिस पोर्शन या फिर दिस पोर्शन या दिस पोर्शन, so any short part of this particular circumference is an arc. Okay, and now of course diameter जो हम लोगों ने पढ़ा कि it passes through the center. अगर कोई चीज, अगर एक बॉल को हम लोग सेंटर से लाइक कट कर देंगे तो वो तो ऑफ कोर्स टू हाफ्स में, मतलब दो भाग में डिवाइड हो जाता है, दो हाफ्स में डिवाइड हो जाता है. तो वो एक दो सेमी सर्कल बना देता है. Semicircle is of as it's very clear, like semicircle is सर्कल का हाफ पोर्शन जो भी होता है. ठीक है, जैसे हम लोग प्रोटेक्टर जब लास्ट टू मतलब कुछ क्लास पहले हम लोग एक प्रोटेक्टर का एक शेप देख रहे थे, तो प्रोटेक्टर इज ऑल्सो अ सेमी सर्कल. ठीक है, जिसका 180 डिग्री वो होता है ना, 180 डिग्री टोटल जो मतलब एंगल्स होते हैं. ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू द फिगर्स सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. आई होप अभी तक सबको क्लियर है. लाइक टिल नाउ वट एवर वी लर्न, लाइक अभी और क्लियर हो जाएगा फिगर इससे. ठीक है, एनीवन हैविंग एनी डाउट और एनीवन वांट्स टू मेंशन एनीथिंग एज ऑफ नाउ? अच्छा, आई होप, आई थिंक नो. यस, क्लियर. ओके ओके, थैंक यू. सो नाउ ये जो बहुत सारे कलर्स के आपको लाइंस दिख रहे हैं, ठीक है, सो वी हैव ऑलरेडी काइंड ऑफ डिस्कस्ड अबाउट द डिटेल्स. मतलब डिटेल में हम लोगों ने पढ़ लिया. वी ऑलरेडी डिस्कस द टर्मिनोलॉजीज एंड ऑल, बट विल सी फिगर में कैसा वो होता है. ठीक है, ये जो आपको डार्क ग्रीन लाइन दिख रहा है, दिस लाइन, ओके, दिस इज बेसिकली द रेडियस. ओके, RADIUS. रेडियस इज द डार्क ग्रीन वाला. नाउ दिस लाइट ग्रीन इज आपका डायमीटर. ठीक है, दिस इज द डायमीटर. This is diameter, which is light green. Light green. Okay. Now we'll move on to the blue part of it. You can see this blue part. This is आपका chord. This is आपका C for chord. Blue. Okay. Now more to, so ये तीनों हम लोगों ने तो पहले ही मतलब पहचान लिया था कि क्या है रेडियस, डायमीटर और कॉर्ड. सो नाउ यू कैन सी देयर इज दिस पर्पल कलर का लाइन जहां पे आपका दो एरोज बने हैं. सो टू एरोज इन द एंडिंग, लाइक एक लाइन का मतलब दो तरफ अगर दो एरोज है तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज नेवर एंडिंग. मतलब ये कहीं पे भी जा सकता है. ओके, so these two arrows denote that it is a line, it is not a line segment. जैसे diameter was a line segment, radius, chord, all of these things were line segment. ये वाला, ये जो purple वाला line है और ये yellow वाला line है, both of them are not line segment, these are lines, right? So it has infinite, it can go till infinite direction or infinite इनका shape and वो हो सकता है. ठीक है, so now what is this entire ये जो सर्कमफेरेंस को कट कर रहा है, दिस इज द टैंजेंट बोलते हैं इसको. ठीक है, ये जो पर्पल है, पर्पल वाला पार्ट है, दिस इज पर्पल वाला पार्ट जो है, दिस इज द टैंजेंट. और ये जो आपको और एक लाइन दिख रहा है, ये येलो वाला, दिस इज आपका सेकेंड बोलते हैं इसको. ठीक है, दिस इज येलो, दिस इज सेकेंड. ओके, दिस इज S एंड दिस इज T.
So both of them are lines. So to understand it better, second क्या होता है? Second आपका, of course, it's something that cuts the circle into two, like it's of course a straight line, एक straight line जो कि आपके circle को 2 points में कट करता है, ठीक है? और इसको आप लोग एक एक्सटेंडेड कॉर्ड के हिसाब से भी बोल सकते हो. ओके, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन अ कॉर्ड एंड अ डायमीटर? ओके, सो या आई विल डिस्कस इट. तो पहले हम लोग कॉर्ड और सेकंड के बारे में वो कर लेते हैं, लाइक व्हाट इज काइंड ऑफ बेसिकली अ सेकंड और कॉर्ड के बीच में दो डिफरेंस होता है. कॉर्ड में क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है? और सेकंड क्या है? SECNT, सेकंड इज अ लाइन, इट्स अ प्रॉपर लाइन. और सेकंड आपका एक्सटेंडेड कॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है. एक्सटेंडेड मतलब आपको पता है कि जो भी चीज जो एक्सटेंड होता है, जो भी चीज जो खींचता है अपने आप को, ठीक है? तो कॉर्ड को अगर खींच देंगे तो कोई लिमिट नहीं रहेगा. अगर हम लोग कॉर्ड को कोई लिमिट पे बांध नहीं रहे, तो अगर कोई मतलब कोई पर्टिकुलर लेंथ नहीं दे रहे कॉर्ड का, तो वो सेकंड बन जाता है. एंड समवन आस्क्ड कि कॉर्ड और डायमीटर का क्या डिफरेंस रहता है? कॉर्ड एंड डायमीटर इज बेसिकली, डायमीटर क्या होता है कि एक लाइन सेगमेंट होता है, विच इज अगेन कॉर्ड इज ऑल्सो अ लाइन सेगमेंट सिमिलरिटीज में. और कॉर्ड का एक एंड पॉइंट एंड मतलब कॉर्ड का एक एंड पॉइंट लाई करता है आपका सर्कल के सर्कमफरेंस में, विच इज अगेन डायमीटर का भी सिनेरियो है. पर डायमीटर आपका कॉर्ड को मतलब डायमीटर आपका सर्कल को दो हाफ्स में डिवाइड करता है, विच अ कॉर्ड डज नॉट. और वी कैन ऑल्सो से कि डायमीटर सम फॉर्म ऑफ कॉर्ड है, मतलब स्पेशल फॉर्म ऑफ कॉर्ड है, पर एग्जैक्टली तो कॉर्ड नहीं बोल सकते, ठीक है? तो वी हैव अ डिफरेंट नेम फॉर दिस, जो कि आपका मिडिल से मतलब डिवाइड कर रहा है. सो बेसिकली डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड बोल सकते हो. ओके, डायमीटर को आप एक लार्जेस्ट कॉर्ड भी बोल सकते हो, ठीक है? देयर इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ डायमीटर. क्यों हम लोग डायमीटर को डायमीटर ही बोलते हैं और इसको अलग से एक नाम दिया है? क्योंकि एक पर्टिकुलर लाइन जो कि एक सर्कल को दो भाग में, मतलब दो हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, अपर हाफ एंड लोअर हाफ, ठीक है? अपर एंड लोअर में इसको अलग कर दे रहा है. और कॉर्ड स्पेसिफिकली आपका अपर और मतलब एग्जैक्टली एक सर्कल को दो हाफ में डिवाइड नहीं करेगा. वो कॉर्ड का प्रॉपर्टी नहीं है. कॉर्ड आपका कोई भी एक आप अगर ऐसे, आप फॉर एग्जाम्पल ये ग्रीन वाला जो आप मैंने बनाया था, इसमें अगर देख लीजिए कि ये वाला अगर आप एक लाइन खींच रहे हो ऊपर से, इसको भी आप कॉर्ड बोल सकते हो. नीचे से अगर एक लाइन खींच रहे हो, उसको भी आप कॉर्ड बोल सकते हो. साइड वाइज अगर खींच रहे हो, उसको भी आप कॉर्ड बोल सकते हो, ठीक है? तो एनीवेयर इफ यू आर काइंड ऑफ जॉइनिंग टू पॉइंट्स, ठीक है, इफ यू आर जॉइनिंग टू एंड पॉइंट्स विच इज लाइंग विद इन द सर्कल, तो उसको आप कॉर्ड के नाम से जान सकते हो. पर डायमीटर स्पेसिफिकली उसका एक पर्पस है, जो कि वो एक सर्कल को दो हाफ्स में डिवाइड करता है. बट अगेन डायमीटर इज एक्चुअली इट्स एक्चुअली द लार्जेस्ट कॉर्ड, ठीक है? ये जो डायमीटर है ना, ये आपका लार्जेस्ट कॉर्ड है, सबसे बड़ा कॉर्ड है. सिमिलर वे में जैसे अर्थ में इक्वेटर वाला पोर्शन क्या होता है कि लार्जेस्ट कवरेज है ना उसका भी, तो लार्जेस्ट वाला पार्ट है इक्वेटर. अगर आप वैसे कंसिडर, मतलब अगर आप ऐसे मतलब विजुअलाइज करना चाहते हो, तो उसके हिसाब से इक्वेटर तो सबसे ज्यादा मतलब वो कवर करता है, ठीक है? सबसे ज्यादा आपका डिस्टेंस बोल सकते हो, ठीक है? बल्ज वाले पोर्शन पे ज्यादा है ना, तो मतलब एक अगर सर्कल आप कंसिडर कर रहे हो, सर्कल के ऐसा कुछ मतलब सर्कल का अगर आप ऐसा कुछ सर्कल कंसिडर कर रहे हो, ये जो मिडिल वाला बल्ज है, ये तो सबसे ज्यादा है ना, ये बल्ज वाला पोर्शन. तो डायमीटर सबसे बड़ा कॉर्ड बन गया. क्योंकि अगर आप ऊपर का कोई एक छोटा सा कॉर्ड पकड़ रहे हो या नीचे से छोटा सा कॉर्ड पकड़ रहे हो, ये दोनों फिर मतलब काफी कम डिस्टेंस कवर करता है दो एंड पॉइंट से. मतलब दो अगर सर्कमफरेंस में आप दो पॉइंट कंसिडर कर रहे हो, if you're considering 2 points in a circumference for a very simple chord, तो उसमें it's not necessarily कि it would be a very big, it will cover a very big मतलब very big area और मतलब very big distance, ठीक है? बट डायमीटर का स्पेसिफिक पर्पस यही है कि ये बहुत मतलब सबसे बड़ा कॉर्ड है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है? दिस इज अबाउट इट. आई होप इट्स क्लियर. मतलब एज सच कोई डिफरेंस है नहीं, ठीक है? जिसने सत्यम मिश्रा आस्क्ड कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन कॉर्ड एंड डायमीटर. डिफरेंस इज दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि डायमीटर आपका एक सर्कल को दो हाफ्स में डिवाइड करता है, एंड डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड, ठीक है?
आई होप इट्स क्लियर. इफ इट्स क्लियर प्लीज काइंडली मेंशन इट एज वेल. ठीक है. पर एज सच लाइक दोनों सेम ही है. अगर आप ऐसे प्रॉपर्टी वाइज देखने की कोशिश करो, ठीक है, या अगर आप प्रॉपर्टी वाइज देखने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि दोनों ही तो लाइन सेगमेंट है, और जैसे सेकंड तो लाइन सेगमेंट है नहीं, सेकंड लाइन है, पर सेकंड एक एक्सटेंडेड कॉर्ड है, मतलब कोई सीमा नहीं है जिस कॉर्ड का, ठीक है, वो कहीं पे भी किसी मतलब दोनों तरफ से अपने हिसाब से बढ़ सकता है, ठीक है, जो कि सेकंड है. ठीक है. प्लीज रिपीट सेकंड अगेन. या ओके श्योर. तो सेकंड क्या होता है? कॉर्ड ही है, कॉर्ड का एक्सटेंशन है. ठीक है. कॉर्ड का एक्सटेंडेड पोर्शन होता है सेकंड. सेकंड को आप बोल सकते हो कि एक स्ट्रेट लाइन, जो कि कॉर्ड, डायमीटर, रेडियस सब कुछ एक स्ट्रेट लाइन ही है. तो एक स्ट्रेट लाइन जो कि एक सर्कल को 2 पॉइंट में कट कर रहा है. ठीक है. ये जो 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट में सर्कल को कट कर दे रहा है, और ये आपका एक एक्सटेंडेड कॉर्ड है. क्यों एक्सटेंडेड कॉर्ड है? क्योंकि ये एक लाइन है, और लाइन का कोई सीमा नहीं रहता है, और कॉर्ड आपका एक स्पेसिफिक सीमा के अंदर रहता है, विच इज इंटीरियर में, मतलब एक सर्कल के इंटीरियर में रहता है कॉर्ड. ठीक है. इंटीरियर में रहता है कॉर्ड. और सेकंड आपका बाहर भी निकल सकता है, बिकॉज इट्स एक्सटेंडेड एंड इट हैज नो बाउंडेशन एज सच. कोई बाउंडेशन नहीं है सेकंड का, नो बाउंडेशन. ठीक है. दिस इज अबाउट इट. आई होप इट्स क्लियर. एंड मतलब यही बेसिक आपका डिफरेंस है. ठीक है. कॉर्ड और सेकंड का. ओके. ठीक है. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आपका सर्कमफरेंस. तो हम लोगों ने जान लिया था पहले ही कि सर्कमफरेंस आपका पेरीमीटर, लाइक इर्द गिर्द, मतलब सर्कल के जो बाहर के जो लाइन है, जो लाइन हम लोग पेंसिल से बनाते हैं, या फिर जो हम लोग एक कॉम्पस को फिक्स एक पॉइंट पे, मतलब निडल को एक फिक्स पॉइंट पे रख के इक्वी डिस्टेंस पे जो लाइन खींच रहे, वही सर्कमफरेंस है. तो ये सर्कमफरेंस के अंदर वाले जो पोर्शन होता है, जो रीजन होता है, ठीक है, और टोटल रीजन, ये जो टोटल वाला रीजन होता है, इसको हम लोग एरिया बोलते हैं. कोई भी चीज का, नॉट जस्ट सर्कल, कोई भी फिगर का एरिया अगर जानना है तो इट्स बेसिकली AREA. ओके. तो ये आपका एक पूरा फिगर का अंदर वाला जो पोर्शन होता है, वो उसका एरिया होता है. अंदर वाला एज इन जो वो काइंड ऑफ कंप्राइज कर रहा है पूरा फिगर को. ठीक है. और सिमिलर वे में आप अभी देखते कि ये क्या है. सो ये जो टेंजेंशियल प्रॉपर्टीज, मतलब टेंजेंशियल प्रॉपर्टीज में हम लोग इसको पढ़ेंगे डेफिनेटली, बट अभी इसको देखते हैं कि क्या होता है इसमें. हम लोग जब लास्ट क्लास में कुछ कुछ चीजें पढ़ रहे थे कि जो परपेंडिकुलर फॉल करता है डिफरेंट फिगर्स में, तो वहां पे हम लोग देख रहे थे कि ये जो टेंजेंशियल प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे ये जो एक टैंजेंट बना रहा है, दिस टैंजेंट, ठीक है, दिस टैंजेंट वी वाज सेइंग कि ये वाला पार्ट यहाँ पे, ये एक ये सॉर्ट ऑफ एक कट, ये एक मीट कर रहा है, एक सर्कमफरेंस के एक पार्ट पे ये मीट कर रहा है. तो ये जो मीट कर रहा है ये वाले पॉइंट पे, तो अगर हम लोग ये जो सर्कल का ये सेंटर हो जाता है, ठीक है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है. जहां पे हम लोग वो निडल प्लेस करते हैं, अगर कॉम्पस से मतलब ड्रॉइंग कर रहे हैं, तो वो जो सेंटर वाला पार्ट है, तो यहां से लेके जो टैंजेंट तक जो एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, या फिर टैंजेंट एज इन जो सर्कमफरेंस में अगर कोई स्ट्रेट लाइन हम लोग गिरा रहे हैं, ठीक है, एज इन इसको आप सोच लीजिए कि इसको हम लोग एज इन इसको हम लोग स्ट्रेट वाइज मतलब फॉल करने के लिए दे रहे हैं. ठीक है. ये O2 फॉर एग्जाम्पल दिस इज P. ठीक है. O से P तक हम लोग एक स्ट्रेट लाइन फॉल करवा रहे हैं, और ये लाइन फॉल कर रहे हैं आपके टैंजेंट के ऊपर. टैंजेंट क्या था? आई थिंक यू रिमेम्बर टैंजेंट क्या था, कि टैंजेंट आपका एक फिगर मतलब टैंजेंट एक लाइन था जो कि आपका एक सिंगल पॉइंट पे एक कोलिनियर स्ट्रेट लाइन था. ठीक है. को प्लानर बोल सकते हो, को प्लानर स्ट्रेट लाइन था जो कि टच करता है सर्कल को एट अ सिंगल पॉइंट, मतलब एक ही पॉइंट में टच करेगा. ऐसा नहीं कि मतलब अगर और एक आपको टैंजेंट देखना है तो ये एक डिफरेंट टैंजेंट हो जाएगा, विच विल बी डिफरेंट, लाइक आप डिफरेंट नाम दोगे. AB विल बी अ डिफरेंट टैंजेंट, दिस CD विल बी अगेन अ डिफरेंट टैंजेंट, जो ग्रीन लाइन है. ठीक है. CD एक डिफरेंट टैंजेंट है, AB एक डिफरेंट टैंजेंट है. AB आपका एक सिंगल पॉइंट में मीट कर रहा है, सिमिलर वे में CD भी आपका सिंगल एक पॉइंट पे मीट कर रहा है. सो टैंजेंट का यही प्रॉपर्टी है. तो ये वाले प्रॉपर्टी पे अगर आप
एक स्ट्रेट रेडियस, मतलब इसको हम लोग रेडियस भी बोल सकते, मतलब रेडियस बोल सकते हैं, राइट, ये ओपी को, राइट। तो ये वाला जो फॉल करता है ये एक एंगल बनाता है विच इज 90 डिग्री। दिस मेक्स एन एंगल विच इज 90 डिग्री। सो अगर मिडिल से, अगर एक सर्कल के सेंटर से, अगर दिस इज द सेंटर, राइट, सो सेंटर से अगर आप कोई भी लाइन एक टैंजेंट के ऊपर या फिर एक फर्स्टली कंसिडर एक सर्कमफेरेंस, ठीक है, एक सर्कमफेरेंस के ऊपर कोई भी लाइन आप फॉल करवा रहे हो और दैट लाइन इज अगेन फॉलिंग टू दैट सिमिलर पॉइंट जहां पे एक टैंजेंट भी कट कर रहा है, टैंजेंट भी मीट कर रहा है, so that will be 90 डिग्री, that will make a 90 डिग्री with that tangent। 90 डिग्री बनाएगा वो टैंजेंट के साथ, ये रेडियस टैंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। सिमिलर वे में यहां से अगर आप ये वाले पॉइंट पे फॉल करवा रहे हो और इसको आप नाम दे दीजिए आर, ओ आर, ठीक है, ये भी आपका एक 90 डिग्री बनाएगा, ये जो ए बी वाला टैंजेंट पे, ठीक है। आई होप इट्स वेरी इजी एक्चुअली, कोई एज सच कोई रॉकेट साइंस है नहीं, मतलब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट पे जाते हैं जहां पे हम लोग देखेंगे कि वो जो हम लोग रीजन बता रहे थे वो रीजन का मतलब क्या है। रीजन एक फिक्स्ड पोर्शन होता है, ठीक है, मतलब एक फिक्स्ड पोर्शन आप पकड़ लीजिए, उसको ही हम रीजन बोल सकते हैं। तो ये जो आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है ना, ये जो ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है, आई होप द कर्सर इज विजिबल, ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है दिस इज द सेक्टर। जो हम लोग पढ़ रहे थे ना इतना देर की सेक्टर क्या है, और सोच रहे थे कि क्या हो सकता है सेक्टर, सो दिस इज द सेक्टर, ठीक है, ये जो ग्रीन पार्ट है। और ये जो आपका पोर्शन है, ये ग्रीन आपका जो ग्रीन वाला, सॉरी दिस येलो वाला पोर्शन, दिस इज द सेगमेंट, ठीक है, ये वाला आपका सेगमेंट होता है, मतलब ग्रीन वाला जो पोर्शन है दिस इज सेक्टर, ठीक है। और आपका ये जो सेगमेंट है दिस इज आपका येलो वाला पोर्शन। और आर्क हम लोगों ने जान लिया था, ये वाला जो आपको एक छोटा सा ब्लू लाइन दिख रहा होगा दिस इज आर्क। अभी यहां से हम लोग डेफिनेशन समझते, पहले सेक्टर पे आते हैं, ठीक है। ये जो सेक्टर है, सेक्टर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि दो रेडियाई और एक आर्क के बीच, तो एक आर्क, अगर आप ये वाला पोर्शन एक आर्क कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, हम कलर चेंज कर दे रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए अच्छे से। ये वाला को, ये वाले पोर्शन को अगर आप एक आर्क कंसिडर कर रहे हो, दिस इज द आर्क, ओके, विच इज इट इज द आर्क, ओके, ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्टर। ये है एक आर्क, ठीक है, और आपका दो रेडियाई, सो दिस इज वन रेडियाई, ठीक है, एंड दिस इज अनदर। सिंगुलर फॉर्म ऑफ रेडियस इज रेडियाई, ठीक है। तो रेडियाई ये एक है और ये एक रेडियाई है। सो आर्क के दो आर्क के बीच, दो सॉरी दो रेडियाई के बीच और एक आर्क के बीच जो एरिया होता है, जो मतलब जो रीजन बाउंड करता है, जो पोर्शन आपको दिख रहा है, दैट इज द सेक्टर। सो ये क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी फिर क्या होगा कि रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई, दो रेडियाई है ना, हाँ, टू रेडियाई एंड आपका आर्क, वन आर्क, ठीक है, एक ही आर्क है ऑफ कोर्स। सो एंड सेगमेंट सिमिलर वे में क्या हो जाएगा फिर, सेगमेंट आपको ये समझ आ रहा है कि सेगमेंट एक ये क्या है, मतलब ये वाला पार्ट यहां से लेके स्टार्ट करके यहां तक एक कॉर्ड है ये, ठीक है। अगेन लेट्स चेंज द कलर फॉर बेटर क्लैरिटी। अरे व्हाई इजंट इट वर्किंग, ओके, हाँ, ये वाला दिस पार्ट फॉलो फॉर द पर्पल वाला मार्क। ये जो पर्पल वाले मार्क पे यहाँ पे है, यहां से स्टार्ट करके यहाँ तक एक आपका कॉर्ड बन गया, ठीक है। कॉर्ड और आर्क, अगेन दिस इज अगेन एन आर्क, एक पोर्शन है ना, सर्कमफरेंस का एक पोर्शन, तो ये फिर एक आर्क ही है। तो ये आर्क और ये जो कॉर्ड के बीचों बीच जो मतलब पोर्शन है, मतलब ये जो रीजन है, दैट इज अगेन द सेगमेंट। तो ये आपका हो गया आपका रीजन बाउंडेड बाय एन कॉर्ड, अ कॉर्ड
a chord and an arc. ठीक है, ये हो गया. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. एंड नाउ एक चीज जो कि आपका हम लोगों को कंसिडर करना पड़ता है कि ये जो सेगमेंट होता है आपका सेंटर कंटेंट नहीं करता है. ठीक है, ये जो सेक्टर होता है ये तो सेंटर से वो कर रहा है, सेंटर से आपका लिंक है इसका. और सेगमेंट का कोई सेंटर से लिंक नहीं है. आप कोई भी पोर्शन को पकड़ लीजिए, ये एक सेगमेंट हो गया, ये एक सेगमेंट हो गया, आप कोई भी पोर्शन को पकड़ लीजिए. ठीक है, और हमेशा ये इंटीरियर में होगा, इंटीरियर में होगा ऑफ कोर्स. ठीक है, ये तो समझ ही आ रहा है डायग्राम से भी, सेक्टर भी इंटीरियर में होगा. दिस इज अबाउट इट. एंड आर्क भी समझ लिया, आर्क इज अ पोर्शन ऑफ दिस सर्कमफेरेंस पार्ट ओनली. ठीक है, just write if there's any like mention if there's any kind of doubt or something. ठीक है, now we'll see ये वाले डायग्राम से. ठीक है, हम लोगों ने काफी टाइम देखा है कि एक अगर आपको याद है कि रिंग्स होते हैं ना, जब स्कूल में पढ़ते थे तो देयर यूज्ड टू बी दिस रिंग्स जो कि हम लोगों के काउंटिंग नंबर सिस्टम पे यूज होता था. देयर यूज्ड टू बी लाइक मेटल रिंग्स जो कि नंबर सिस्टम पे यूज होता था. एंड लेटर इट वाज आल्सो यूज्ड फॉर टीचिंग लाइक सर्कल्स के बारे में. तो ये जो रिंग्स होते थे, ये रिंग्स काफी टाइम एक बड़ा रिंग होता था और एक छोटा सा भी रिंग होता था. फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंसिडर फॉर बॉयज, एक बैंगल, अगर आप एक बैंगल को कंसिडर कर रहे हो तो बैंगल का क्या होता है, मतलब बैंगल एक थोड़ा सा थिक होता है ना बैंगल. इफ यू आर कंसिडर इफ फॉर एग्जाम्पल दिस इज ओनली अ बैंगल, ठीक है, which is a very bad bangle to begin with, but then if this is a very rough bangle, तो बैंगल का एक थिक पोर्शन रहता है. तो बैंगल को अगर आप एक 2D फिगर इन में अगेन विच इज अगर आप एक 2D फिगर इन में पहचानने की कोशिश कर रहे हो तो बैंगल का एक आउटर सर्कल रहेगा और एक इनर सर्कल रहेगा. राइट, मतलब एक बाहर की तरफ से आपका एक सर्कल रहता है और एक अंदर की तरफ से और एक सर्कल रहता है. ठीक है, तो दो सर्कल का दो रेडियस होगा. आपको ये समझ आ रहा है? दो सर्कल का सर्टनली एक मतलब बैंगल अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो उसका एक सर्टनली एक मिड पॉइंट तो है, पर उसके साथ साथ ही आपका एक मिड पॉइंट के साथ साथ ही उसका जो सर्कमफेरेंस तक जो डिस्टेंस है, मिड पॉइंट से सर्कमफेरेंस तक जो डिस्टेंस है, ये आपका जो रेडियस है, बड़ा वाला सर्कल का तो बड़ा रेडियस होगा और छोटा वाले का फिर छोटा होगा. ठीक है, तो दिस इज अबाउट इट. एंड ये जो एरिया है अभी, ये जो आपका ये जो डार्क रेड और थोड़ा सा और एक डिफरेंट रेड के बीचों बीच ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एन्यूलस. I hope it's clear. I'm trying to use a real life example so that सबको याद रहे. ये जो पोर्शन होता है ये एन्यूलस होता है. सिमिलर वे में अगर आप एक बैंगल को कंसिडर करें, बैंगल का जो आउटर विथ होगा और जो मतलब आउटर विथ नहीं, अगर आप एक बैंगल को 2D फिगर इन में अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग, अगर आप एक बैंगल को 2D फिगर इन में रिप्रेजेंट कर रहे हो और जो आउटर सर्कल होगा और जो इनर सर्कल होगा उसके बीचों बीच जो पोर्शन रहता है उसको एन्यूलस बोलते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिंग का भी सेम है. ओके, या थैंक यू. ओके, रिंग का भी सेम होता है. रिंग अगर आप एक रिंग को कंसिडर कर रहे हो जो फिंगर में पहना जाता है, रिंग का भी सेम होता है, एक आउटर सर्कल एक इनर सर्कल. अर्थ का भी होता है, राइट, अर्थ का एक कोर होता है. सर वाज टीचिंग, राइट, कोर एंड तो ये जो लेयर्स होते हैं, तो these layers have different radius from मिडल से, मतलब जो सेंटर से डिफरेंट रेडियस रहता है, राइट. कोर का डिफरेंट है, फिर उसके बाद का लेयर का फिर डिफरेंट है. सो सिमिलर वे में वैसे मतलब ऊपर तक का फिर डिफरेंट अपना अपना रेडियस है. अब तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, मतलब आउटर सर्कल टू इनर सर्कल के बीचों बीच जो रीजन होता है, दैट इज एन्यूलस. सो एन्यूलस का फिर आपका अगर आप डेफिनेशन जानने की कोशिश करोगे तो एन्यूलस का डेफिनेशन अगेन इट्स अ रीजन बाउंडिंग. ठीक है, एक रीजन ही बाउंड कर रहा है ये भी तो, और बाउंडेड बाय क्या, किसके साथ, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल. और ये जो आउटर सर्कल और इनर सर्कल को हम लोग मतलब बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक. ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं इसको. तो ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीचों बीच जो आपका रीजन है, ये वाला पोर्शन, दिस इज आपका एन्यूलस. ANNULUS, एन्यूलस. ठीक है, वेरी इजी, नथिंग
to worry about actually. Now we will see further, मतलब कुछ और चीजें देख लेते हैं quickly. अब ठीक है, अभी हम लोग ना थोड़ा सा वो करते हैं कि सर्कल के, अभी ये दो हम लोग समझेंगे डेफिनेटली, ये दो हम लोग समझेंगे, बट अभी बिफोर दैट लेट्स सी कि सर्कल की प्रॉपर्टीज क्या होता है. कैन एनीवन राइट डाउन कि अभी तक जितना भी हम लोगों को पता चला उसके हिसाब से सर्कल की प्रॉपर्टीज कोई मेंशन कर सकता है? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट कुड बी अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल? सर्कल की कुछ भी प्रॉपर्टीज अगर आपको ध्यान आ रहा हो, आप बता सकते हो. Meanwhile, I'll just drink water. So, आप लिख लीजिए. Okay. Achal has written circle has no sides. Okay. Anyone else? Okay. Quickly we'll discuss. Okay. Got it. Quickly. अगर किसी और को लिखना है, you can write as well. We'll just quickly discuss कि properties क्या होता है circle के. Let's. प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल पे फर्स्ट तो आपको बहुत ही इजीली वो चीज मतलब याद आ जाएगा कि सर्कल के जो आउटर लाइन होता है, जो कि आपका सर्कमफेरेंस है, आउटर लाइन जो है, ठीक है, ऑफ अ सर्कल विच इज आपका सर्कमफेरेंस. ये जो सर्कमफेरेंस है ये इक्वी डिस्टेंस होता है. दिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ कोर्स सेंटर. ठीक है, फ्रॉम, अरे ई क्यों लिखा मैंने, फ्रॉम सेंटर. सेकेंड आपका हो गया. ओके, एनीवन एल्स हैज written anything? अच्छा, लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर to the tangent is always perpendicular. Line passing through center to tangent. Okay. Next, आपका एक और एक लाइक प्रॉपर्टी हो जाता है कि डायमीटर का एक प्रॉपर्टी जो हम लोग देख रहे थे. ठीक है, डायमीटर क्या करता है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. हो गया. नेक्स्ट थर्ड इज आपका सर्कल का, अगर दो सर्कल आप कंसिडर कर रहे हो और दो सर्कल्स के इक्वल रेडियाई है तो वो ऑफ कोर्स कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर होगा, है ना. अगर आप दो सर्कल कंसिडर कर रहे हो और दो सर्कल का इक्वल रेडियाई है, रेडियाई आपका इक्वल है, तो वो तो कॉन्ग्रुएंट है, एक दूसरे को ओवरलैप कर ही देगा. ठीक है, ये सर्कल इसके ऊपर अगर आप चढ़ा दे रहे हो तो इसको ये फिर कंप्लीटली इसको वो कर देगा. तो ये वाला प्रॉपर्टी क्या हो गया, सर्कल के अगर इक्वल रेडियाई है, सर्कल्स, ओके, सर्कल्स के अगर इक्वल रेडियाई है तो दिस आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. Congruent each other. Now 4 is आपका और एक प्रॉपर्टी आ जाता है कि अगर पहले तो इक्वल रेडियाई वाला जान लिया, अगर डिफरेंट मतलब अगर दो डिफरेंट साइज, लाइक दो डिफरेंट साइज या दो डिफरेंट रेडियाई का है, तो मतलब अगर दो डिफरेंट साइज का, फॉर एग्जांपल एक बड़ा सर्कल है एक छोटा सर्कल है, ठीक है, और इनका फिर रेडियाई तो डिफरेंट होगा, है ना. इनका तो रेडियस और रेडियाई जो भी आप बोलो, वन इज रेडियाई, तो रेडियाई अगर आप कंसिडर कर रहे हो, सो विच विल बी आपका टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विल ऑलवेज बी सिमिलर. या yes right Shubham, that's what I was about to write. तो वही है, easier तो मतलब शुभम ने जो लिखा है that is absolutely correct. Two concentric circle will always be similar. ठीक है,
एंड इजियर लैंग्वेज में अगर आप जानने की कोशिश करोगे, सिमिलर कौन से मतलब सर्कल्स होंगे जिनका डिफरेंट रेडियाई हो सकता है और डिफरेंट साइज के भी हो सकता है, विच इज वॉट शुभम मेंशन, विच इज आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल। आप अगर जैसे हम लोगों ने देखा कॉन्सेंट्रिक सर्कल में, सो डिफरेंट रेडियस डिफरेंट साइज थे, तो वो सिमिलर है, ठीक है। और 5 में एक आ जाता है कि और एक अगर और एक आपका ओके, डायमीटर आपका लार्जेस्ट, ये तो बता ही दिया था कि डायमीटर आपका लार्जेस्ट वो है, डायमीटर लार्जेस्ट कॉर्ड है, विच इज अगेन अ प्रॉपर्टी ऑफ डायमीटर, तो ये एक लार्जेस्ट कॉर्ड है। और एंड अनदर थिंग इज दैट, जो कि हम लोगों को एज एन पता है, तो आई प्रोबेबली आई जस्ट मिस्ड इट आउट, कि ये जो रेडियस है, तो रेडियस का ट्वाइस आपका डायमीटर बन जाता है, फिर मतलब दो रेडियस अगर आप पकड़ रहे हो तो ये डायमीटर बन गया। तो डायमीटर क्या बन गया आपका, डबल रेडियस, ठीक है। डबल रेडियस इज डायमीटर, डी फॉर डायमीटर। So this is about it. These are the basic properties. I hope it's clear. अभी तक जितना भी बताया मैंने, ठीक है। अभी हम लोग जल्दी से वो वाला देख लेते हैं कि ये दो क्या फिगर बताने की कोशिश कर रहे थे। तो ये क्या आपको देख के ही समझ आ रहा होगा कि दिस वाला फिगर, दिस वन, ठीक है, दिस वन स्पेसिफिकली। सो ये जो ए सी है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस ए सी इज एक्चुअली और डायमीटर, है ना। ये ए सी, ओ तो आपका मिड पॉइंट है, और यहाँ से आपका एक ए सी आपका डायमीटर है। तो ये डायमीटर आपका एक हाफ सर्कल, मतलब हाफ सर्कल को हम लोग सेमी सर्कल भी बोलते हैं। दिस ए बी सी, ये जो एक सेमी सर्कल बना रहा है, दिस सेमी सर्कल इट्स फॉर्मिंग अ सेमी सर्कल। ओके, हाँ, तो ये एक सेमी सर्कल बना रहा है। सो सिमिलर वे में ये जो सेमी सर्कल के जो हमेशा एंगल होंगे ना, मतलब अगर आप एक कॉर्ड एक्सटेंड करके, मतलब ए बी जैसे एक कॉर्ड है और बीसी एक कॉर्ड है, तो ये कॉर्ड एक्सटेंड करके अगर आप कहीं पे भी फॉल करवाओ, वो आपका 90 डिग्री बनाता है। सो दिस एंगल ए बी सी is 90 degree. That's the reason why angle ABC is 90 degree. So basically, अगर एक semicircle है, तो semicircle is the angle of a semicircle is basically a 90 degree always. ठीक है। तो अगर आप कहीं पे भी फॉल करवाते, अगर यहाँ से यहाँ मतलब एक छोटा सा ये वाला जो है, ओके, आई एम जस्ट ड्राइंग इट इन अ डिफरेंट पेज सो दैट, यहाँ पे बहुत खिंच पिच हो गया है। सर्कल था और आपका एक डायमीटर था, और डायमीटर आपका ए बी था, है ना, और मिडिल में ओ था, और क्या था, और यहाँ पे हाँ ए सी था, जो भी है, नाम तो नाम नहीं है, ए बी, यहाँ पे सी कर देते इसको, ठीक है, इसको सी कर देते हैं। ये जो भी बनाएगा, ठीक है, नाउ दिस इज एंगल ए सी बी, दिस विल ऑलवेज बी 90। यहाँ ये वाला हो गया, अगर आप इसको छोटा बनाते, ये एक डायमीटर बनाते, और ठीक है, इफ दिस वाज द डायमीटर ए बी अगेन, और सी आप ऐसे बनाते हैं, थोड़ा सा इसको इस तरफ मूव करवाते, फिर भी वो 90 बनाता। तो बेसिकली एक सेमी सर्कल, मतलब ये जो हाफ सर्कल होता है, ये जो सेमी सर्कल बना रहा है, सेमी सर्कल डायमीटर जो कट करके जो सेमी सर्कल बना रहा है, वो सेमी सर्कल का जो एंगल होता है इज जो एंगल ऑफ सेमी सर्कल, बेसिकली एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज राइट एंगल विच इज 90, ठीक है, विच इज आपका 90। आई होप दिस क्लियर, ये हमेशा 90 होता है। नाउ नेक्स्ट और एक फिगर था, ये वाला फिगर, ठीक है। ये वाले फिगर पे क्या हो रहा है, आपको दिख रहा है कि दो टैंजेंट है, एक ये वाला टैंजेंट है, सी से स्टार्ट हो रहा है, एक बाहर एक पॉइंट है सी,
यहां से एक पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये कट कर रहा है कहाँ पे, ए पे कट कर रहा है। और सिमिलर वे में ये सी से और एक मतलब टैंजेंट स्टार्ट हो रहा है जो कि सर्कल को और एक पॉइंट पे कट कर रहा है, विच इज बी पॉइंट पे, है ना। तो अभी क्या हो रहा है, ये जो बी पॉइंट पे कट कर रहा है और ए पॉइंट पे कट कर रहा है, बिकॉज इन द प्रीवियस दिस थिंग, इन द प्रीवियस पेज हम लोगों ने ये वाला फिगर पे, इन दिस फिगर वी सॉ कि टैंजेंट लाइक मिड पॉइंट से, अगर एक ओ पॉइंट से अगर आपका कोई भी टेंजेंशियल लाइक ये जो टैंजेंट के पॉइंट पे अगर सर्कमफ्रेंस के पॉइंट पे फॉल कर रहा है, जो पॉइंट पे टैंजेंट मीट कर रहा है, सो दैट इज अगेन 90 डिग्री। ओके, सो अभी क्या हो रहा है, सो इन दिस डायग्राम अगेन, तो अगर दो आपका टू टैंजेंट्स आर देयर, दो टैंजेंट है, वहां पे आपका दो टैंजेंट एक सर्कल के बाहर पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है एंड इक्वल, अगेन दिस आर इक्वल, इक्वल लेंथ का भी है। तो ये क्या करेगा, ये आपका 90 डिग्री बनाएगा। और देयर आर फ्यू अदर प्रॉपर्टीज जो कि है आपका ये वाला, दिस ए सी बी विल बी इक्वल टू ए सी, ठीक है, और आपका सी बी विल बी इक्वल टू ए सी, और दिस थिंग विल ऑल्सो बी इक्वल, ये ओ ए विल ऑल्सो बी इक्वल टू ओ बी, ठीक है। So basically, two tangent on a circle that is meeting at a point outside the circle are equal in length. So this is the basic fundamental of this particular diagram. मतलब AC is equal to BC, और इसी वजह से आपका of course this OA and OB तो similar है ही, क्योंकि वो तो आपका रेडियस है, तो OA and OB is similar, OA, ठीक है, OA and OB is similar। आई होप इट्स क्लियर। तो यहाँ पे, और ये तो अब पहले वाले डायग्राम पे ही हम लोगों ने समझ लिया था कि अगर एक रेडियस फॉल कर रहा है सर्कमफेरेंस पे, और वो वही पॉइंट है जो जहाँ पे एक टैंजेंट, कोई भी एक टैंजेंट कट कर रहा है, तो दैट वुड मेक अ 90 डिग्री। तो इसी वजह से ये 90 डिग्री भी बन जाता है। ओके, सो दिस इज अबाउट इट, दिस इज द डायग्राम, मतलब यही था। बाकी आई गेस इतना सबको क्लियर है। Just write yes or no if it's clear, and then we can move forward with further tangent के property. Okay, 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 okay. अरे ठीक है, ठीक है, okay. तो ये आपका फिर नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं अभी और एक प्रॉपर्टी है, और दो प्रॉपर्टी है एक्चुअली। यहाँ पे ये जो हम लोगों ने अभी जाना, ये जो टू टैंजेंट्स जो कि ड्रॉ होगा सर्कल में, ये वाला डायग्राम से हम लोगों ने ये जाना कि अगर टू tangent है, if two tangents are there drawn to a circle, ठीक है, ये अगर दो tangent है from outside, from a point outside the circle, a point, ठीक है, single point outside the circle, तो वो हमेशा ये जो लेंथ्स होंगे, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट से, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट तो सेम थे ना, एक्सटर्नल पॉइंट्स विच वो सेम एक्सटर्नल पॉइंट से जो आपका लेंथ होगा, लेंथ ऑफ द टैंजेंट, ठीक है, वो होगा आपका इक्वल, आपका वो इक्वल होता है, जो कि हम लोगों ने पहले वाले डायग्राम पे देखा। अभी नेक्स्ट वाले डायग्राम पे देखते हैं। अरे ये तो एक सेकेंड, ओके, just give me a second, it's uh, back up, okay।
Let's start. So now another property of this particular tangent is अगर एक अभी ड्रॉ करते तो ड्रॉ करने के बाद आई विल एक्सप्लेन. ड्राइंग कम कर गया. ये अगर एक सर्कल है और यहाँ से एक टैंजेंट है, ठीक है, टैंजेंट, ठीक है, ये जो टैंजेंट है ये अगर और एक आप कंसिडर कर रहे हो, एक कॉर्ड कंसिडर कर रहे हो ए बी, ए और बी, ठीक है, और ये अगर एक कॉर्ड को आप एक्सटेंड करवा के टैंजेंट के वो मीटिंग पॉइंट पे मीट करवा रहे हो, ठीक है, टैंजेंट जहां पे सर्कमफ्रेंस पे मीट करता है एंड यू आर नेमिंग इट एज पी, ओके, एंड दिस ये अब एक एंगुलर प्रॉपर्टी है टैंजेंट के, विच इज आपके ये जो एंगल बनता है, द एंगल विच अ कॉर्ड मेक्स विद द टैंजेंट at the point of contact, ठीक है, वो which becomes equal to any angle that is made by the same chord at an alternate segment. और सेगमेंट हम लोगों ने पढ़ा था, ये एक सेगमेंट है, ऑल्टरनेट सेगमेंट पे कोई भी एक एंगल के साथ वो इक्वल होता है, ठीक है, मतलब क्या बन गया, ये जो ए पी, इसको हम लोग ए पी क्यू दे देते नाम, ठीक है, ये जो ए पी क्यू है, एंगल ए पी क्यू, ये आपका ये जो एंगल है इट वुड बी इक्वल टू आपका ये वाला एंगल, एंगल ए बी क्यू, ए बी पी, सॉरी ए बी पी, ठीक है, मतलब क्या बन गया यहाँ पे प्रॉपर्टी के हिसाब से कि एंगल विच अ कॉर्ड मेक्स, आई होप कॉर्ड सबको क्लियर है अभी तक. कॉर्ड ये वाला जो ए बी है कॉर्ड, ए पी एक कॉर्ड है और बीपी भी एक कॉर्ड है, ये लाइन सेगमेंट जो है ये एक कॉर्ड है, ठीक है, ये जो एंगल बना रहा है टैंजेंट के साथ विथ टैंजेंट, ठीक है, दिस इज इक्वल टू एनी एंगल, कोई भी एंगल, any angle made by the same chord. In an alternative segment. और एक सेगमेंट में ये वाला एक सेगमेंट है, ठीक है, तो ये सेगमेंट एक कॉर्ड है, ये वाला कॉर्ड है, ये जो एक बना रहा है, या फिर एपी अगर आप कंसिडर कर रहे हो, ये एपी जो एक कॉर्ड है, ये जो एक एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल इज इक्वल टू जो ऑल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं उसके साथ सिमिलर होता है. Is a chord and a tangent parallel to each other? Chord and a tangent parallel to each other, not necessarily, but ये ए बी और ये जो tangent है ये तो parallel है, पर ये जो अगर आप AP वाला आप कंसिडर कर रहे हो, AP को chord, AP भी तो लाइक chord है ना, अगर आप ये एक tangent पकड़ रहे हो और यहाँ पे एक chord पकड़ रहे हो, तो ये तो आपका विजिबली पैरेलल है ना, हाँ, और अगर आप ये वाला कॉर्ड पकड़ रहे हो तो ये तो कभी भी आपका मतलब ये वाला कॉर्ड पकड़ रहे हो, फॉर एग्जांपल दिस इज डी सी कॉर्ड पकड़ रहे हो, सो दिस वोंट एवर बी काइंड ऑफ पैरेलल विथ दिस टैंजेंट, ये वाला टैंजेंट, अगर आप ओपी ये वाला टैंजेंट पकड़ रहे हो, ओपी को एक टैंजेंट पकड़ रहे हो, राइट, सो इट्स नॉट नेसेसरीली, बट सिचुएशनल वाइज, डायग्राम के वाइज, न्यूमेरिकल लाइक सम के वाइज आपके सेम हो, मतलब पैरेलल हो सकते हैं, मतलब सम के हिसाब से आई एम टॉकिंग, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइए, ये पैरेलल नेसेसरीली मतलब अपने अपने प्रॉपर्टीज के हिसाब से पैरेलल नहीं होंगे. हाँ हाँ ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते. नेक्स्ट वाला जो पॉइंट था, अगेन नेक्स्ट वाला इज वेरी इंटरेस्टिंग. 3D शेप्स कहाँ से आ गया, ओके,
अभी नेक्स्ट वाले पे आपका अगर एक अगेन आप डायग्राम से समझते हैं, अगर एक ये सर्कल है और एक टैंजेंट है आपका, एक पी पॉइंट से अगर आपका एक टैंजेंट निकल रहा है, दिस टैंजेंट पी, पी से आपका ये टी पे मीट कर रहा है अगेन, एंड देन दिस इज दिस पी पॉइंट से अगर आपका ये टैंजेंट निकल रहा है एंड दिस इज मीटिंग एट अ पॉइंट टी, so this pt जो tangent है, this pt is a tangent, right? So this would be, and p यहाँ पे आपका एक एक्सटर्नल पॉइंट, जैसे हम लोग वो c वाला पॉइंट को एक्सटर्नल पकड़ रहे थे, so p को अगर आप एक एक्सटर्नल पॉइंट मान के यहाँ से आप एक लाइन खींच रहे हो, एक सेकंड बना रहे हो, ठीक है? For example, this is a particular second that you're making, and you're naming it as a pt q r, ठीक है? So this PTQR, you're naming it as this. So now what will happen is this PQR, मतलब ये जो, हाँ ये जो पार्ट है ये आपका एक सेकंड है ना, राइट? ये इसका कोई, this PQR, this is a second. Now, so now what will happen is this this QR is a point where it is cutting like this entire circle, है ना? So now this second, ये PQ जो पॉइंट है, Q और R जो पॉइंट है, इस पे कट कर रहा है सर्कल को, कट्स सर्कल, कट्स द सर्कल, राइट? अभी क्या होगा फिर, ये PT जो होता है प्रॉपर्टी वाइज, ये PT और Q, दिस वन QP प्रॉपर्टी वाइज, तो पहले के प्रॉपर्टी में अगर हम लोग जाते हैं, लास्ट वाले प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने अभी देखा, लास्ट टू लास्ट प्रॉपर्टी, यहाँ पे दो टैंजेंट अगर बाहर से ड्रॉ कर रहे तो ये आपका इक्वल हो जा रहा था, सो यहाँ पे तो इक्वल तो नहीं होंगे, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये जो PT हो रहा है, ये PT का जो स्क्वायर होगा, दिस वुड बी इक्वल टू PQ इंटू QR, ये एक प्रॉपर्टी है. सो दिस वुड बी इक्वल टू PT, PT स्क्वायर विल बी इक्वल टू PQ इंटू QR. बेसिकली ये जो सेगमेंट सेकेंड बना रहा है PQR, ये जो एक सेकेंड बना रहा है अपने अपने आप को, और ये Q और R पॉइंट पे कट कर रहा है, सो दिस वुड बेसिकली बी, दिस इज अगेन अ फॉर्म ऑफ कॉर्ड दैट इज फॉर्मिंग. तो अकॉर्डिंगली वी कैन राइट कि PT जो स्क्वायर है, मतलब ये जो टैंजेंट का जो स्क्वायर होगा, विच विल बी इक्वल टू 2 halves of this particular second. This is about it, like product of 2 halves of this particular second. So this is about it. And और कुछ कुछ चीजें हैं जो कि अभी necessary तो नहीं है, पर ये जान के रखना, it's not bad. तो I'll just say area of a triangle का formula and basically circumference का formula. So area of a triangle का formula होता है pi r square and circumference का होता है आपका 2 pi r, ठीक है? 2 pi r and pi r square. Pi का value is again 3.14 something होता है, तो 3.14 तक कंसिडर करते हैं. सो अकॉर्डिंगली वी कैन सॉल्व आउट न्यूमेरिकल्स एंड ऑल. ओके, और थोड़ा सा बाकी रह गया. There are few things, like few other things that I wanted to discuss, but again I thought I'd take less time, but ठीक है, कोई बात नहीं. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करते हैं बाकी वाला पोर्शन. और आई हैड 2-3 न्यूमेरिकल्स जो कि बाकी PCS एग्जाम्स वगैरह में आए थे, या 22/7, ये यस. आई होप बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज थे वो आपको समझ, लाइक वो आपको पता चल गया. एंड व्हाट निवेदिता राइट, इट्स एब्सोल्युटली राइट. आप पाई का जो फॉर्मूला है, पाई का जो वैल्यू है, सॉरी, पाई का जो वैल्यू है दैट इज ऑल्सो 22/7. अगर आप फ्रैक्शनल के हिसाब से यूज करना चाहते हो तो दैट वुड बी 22/7 एज वेल.
I hope radius, diameter, chord, sector, segment, arc, circumference और कुछ बाकी रहेगा, secant, tangent, ये सब कुछ सबको clear हो गया है. मतलब more or less clear हो गया है, और few tangent के जो 3 properties थे, I hope it's clear. Okay. Properties भी थे मतलब circle के, वो भी हम लोगों ने discuss कर लिया. तो so next class we can do something else. Thank you so much, guys. Thank you for attending again. If you have any doubts, you can ping me up, or you can also